So hello everyone, Razia Mashkoor, 12 in 10 and नया episode. See who is with me today. None other than I love her. और मुझे याद है मैंने मेरे मेरे भाई की शादी में, मेरे कजिन की शादी में एक्चुअली दिन पर आपका जो गाना है सड़क का, उस पर डांस किया था. Oh, nice. Thank you so much for That's giving lovely. time and welcome at BDC. Welcome. So first of all, this is your birthday week, so happy birthday to you. Thank you so much. आप बहुत लंबी उम्र हो और बहुत सारे शाहिद और ईशान के बच्चों के साथ खेलें और उन्हें अच्छे What did you do on your birthday? Oh, it was very sweet. They had planned something quietly. So Ishan took me for a drive. Meera, Sasha, and the kids aren't here. Shahid and Meera aren't here, and the kids aren't here. So Ishan and his friends, they planned everything, and so they took me for a drive so that they could set up the house which Meera had decorated. She'd got it done. Oh, sweet. And so the whole house was full of very beautiful flower arrangements and I saw some Mexican pictures food on and Insta. and some lovely snacks and everything. And so they called my friends for a surprise. And when I came back home, everybody was there. Oh, So wonderful. yeah, it was very sweet. So I walked in and then we had a lot of fun and we danced and we sang and we chatted and caught up because of the lockdown we've hardly met. Yeah. And though the lockdown is over now, but because of the COVID situation, we aren't meeting so much. So yeah, it was very sweet, very, very sweet. It wouldn't have been a better evening. I mean, it was so sweet from there because Shahid is shooting. He's shooting in outdoors and he's shooting outdoors. And Meera and Ishan and Ishan's friends, they all got together. They brought me such a beautiful cake with ghungroos. Ishan's friend Ananya brought me a cake and it had ghungroos on it and it had all the pictures, special moments with the family. On cake? Yeah, they had made it with chocolate. Wow, I never heard. And a very sweet cake with all the pictures of all of us together, including the little kids and everything. It was just gorgeous. Wonderful. So you are from Delhi? Well, originally we've lived mostly in Delhi, but I was born in Moscow and then we were in Delhi for a short while, but then my parents they shifted to Bombay. My father was the first editor of Urdu Blitz, which he had designed with B.K. Karanjia. And so we were in Bombay. And हमारे क्या कहते हैं नाना ही हैं क्योंकि हमारे असली नाना तो खत्म हो गए थे when Ammi was young. तो हमारे प्यारे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब was a great writer, great director. उन्होंने राज कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत फिल्में भी लिखी हैं. तो he used to be right opposite our school. And उनका घर था तो we used to stay there and then my parents had very long working hours. My mother was also writing for Blitz and working with my father. So, we used to stay there and then our parents used to come and pick us up and we used to go home. So this was a regular feature. So we grew up with all the film industry around us and understanding what filming is and what it takes to make films. And उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए. So I was about 6 or 7. But I have very, very sharp and very clear memories of my childhood in Bombay also. Moscow and then Delhi. तो दिल्ली की जुबान तो बहुत साफ है लेकिन मॉस्को में पैदा होने वाली लेडी इतनी अच्छी जुबान इतनी क्लियर उर्दू कैसे बोलती हैं? No, मैं बहुत छोटी थी. I was a child when I came back. I was a very small child when I came back from Moscow. और दूसरी बात ये कि हमारी खाला मॉस्को में शाहिदा बासु is famous for her news reading. तो उर्दू में बहुत ही तो इसलिए वो खानदानी इन्फ्लुएंस है वो तो कहीं नहीं जाता. बिल्कुल I agree with you. My mother was one of the top translators from Urdu to English, English to Urdu, Russian to Urdu. तो उनकी तो ज़बान बहुत ही साफ थी और हमारे खानदान में सभी की बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त ज़बान है. और my father Anwar Azim साहब, Janab Anwar Azim साहब was one of the finest Urdu writers, progressive writers of Urdu. तो उनके तो क्या कहने मतलब. So we were surrounded by people with
बहुत ही एलिक्वेंट लैंग्वेज और साफ जबान और जिसे कहते हैं कि आलिम जबान। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जब आप का बचपन से जो आपका टीन एज था उसका कोई वाकया दिल्ली या मुंबई का आपको याद हो, समथिंग दैट स्टिल इन योर माइंड? जी, तो मेरा ऐसा था रज़िया कि आई वाज एक्चुअली स्टडीइंग इन अ हॉस्टल इन नैनीताल। और स्कूल का नाम था ऑल सेंट्स, इट वाज अ ब्रिटिश स्कूल। मैं वहीं थी एंड आई वाज वेरी हैप्पीली एंड वेल एस्कॉन्स्ड इन दिस स्कूल ऑफ माइन। माय पेरेंट्स वर मिसिंग मी एंड दे वांटेड मी बैक इन दिल्ली विद देम। तो उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, तो मैंने एक शर्त रख दी। अच्छा। मैंने शर्त ये रखी कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपने स्कूल में, और अगर मुझे वापस आपके पास यहाँ दिल्ली प्लेन्स में आना है पहाड़ छोड़ के, तो फिर मुझे आप गुरु पंडित बिरजू महाराज से कथक सिखवाइए। So they were very taken aback and they said कि तुम बच्ची हो, छोटी हो। हाँ, मैंने सीखा जरूर है। I've been dancing from the age of 3 and मैंने पहला परफॉर्मेंस यहाँ बॉम्बे में 4 साल की उम्र में दिया था। And so I've been dancing all my life. लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे उन्हीं से सीखना है, क्योंकि 1 साल पहले जब मैं सर्दियों में आई थी दिल्ली अपनी छुट्टियों में स्कूल से, तो मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा था पुराने किले में, और इट वाज अ वंडरफुल 4 days कॉन्सर्ट्स बाय द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस एंड डांसर्स। और जब मैंने महाराज जी को पहली बार स्टेज पे देखा तो मैं मुग्ध हो गई, और मैंने कहा कि मुझे यही करना है बस जिंदगी में। और ये मेरी खुशकिस्मती रही कि बच्चे जो है वो कह तो देते हैं, लेकिन उसको कर देना और पेरेंट्स का इतना ज्यादा सपोर्ट कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई जॉइंड कथक केंद्र, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे 1 सवा साल में ही, एलिमेंट्री क्लास 5 साल की होती है कथक केंद्र में, उन्होंने 1 सवा साल में ही मुझे अपनी क्लास में ले लिया। सो आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट्स ही एवर हैड। मैं 11.5 साल की थी व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम महाराज जी। तो ये मेरी एक जर्नी है, और इसका एनेक्डोट ये है कि उससे साथ साथ मैंने थिएटर भी बहुत किया था। तो एक मजेदार बात यह है कि मैं महाराज जी के बैले में परफॉर्म कर रही थी, और हमारे वालिदैन जो हैं दोनों, वालिदा और वालिद बिल्कुल सामने की रो में बैठे हुए थे, और पीछे कुछ लोग बैठे थे। तो वो एक दूसरे को मेरे बारे में बता रहे थे कि तुम्हें पता है ये 2 जुड़वा बहनें हैं। अच्छा। एक का नाम नीलिमा है और दूसरा का नाम कमल है। और नीलिमा जो है वो बहुत अच्छी कथक डांसर है, और जो इसकी जुड़वा बहन है बिल्कुल एक ही शक्ल की हैं दोनों, लेकिन पर्सनालिटी अलग है। अच्छा। और वो जो है वो थिएटर की एक्ट्रेस है। तो माय पेरेंट्स वर वेरी अम्यूज्ड, और उन्होंने कहा नहीं, उनको बताया नहीं। उन्होंने कहा कि चलो ये तो बड़ी मजेदार बात है, इनको ऐसे ही सोचने दो। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, आपको बताना चाहिए था। तो दे सेड नहीं वो बहुत मजेदार चीज है कि तुम्हारे 2 रूप और बिल्कुल 2 डिफरेंट डिमेंशंस को उन्होंने 2 लोगों में बांट दिया। Exactly. और उसके बाद तो इस तरह की बड़ी मजेदार बातें हुआ करती थी। क्योंकि मैं थिएटर भी मैंने शुरू किया था अभी तनवीर साहब के साथ जब मैं 10 साल की थी, और साढ़े दस साल की थी। और बस तभी आई थी स्कूल से, मैंने एक प्ले किया था उनके साथ, फिर वापस हॉस्टल चली गई, फिर आई, फिर मैंने क्या कहते हैं 1 साल 1.25 साल रेवा विद्यार्थी जी से सीखा। उनका बेटा बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर एक्टर और विलन रहे हैं हमारी फिल्मों में, आशीष विद्यार्थी। तो उनके फादर जो है वो डायरेक्टर थे हमारे कथक केंद्र के, गोविंद विद्यार्थी, और रेवा जी सिखाती थी एलिमेंट्री वहाँ पे। वो बहुत बड़ी शागिर्द थी पंडित बिरजू वो शंभू महाराज जी की, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन महाराज जी ने मुझे अपनी क्लास में बहुत जल्दी ले लिया। तो वो मुझसे कुछ खफा भी रही इस बात से, हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि क्योंकि मुझे महाराज जी से हमेशा से सीखना था, तो मैं दबादब कुछ कहे बगैर भाग गई उनकी क्लास में। वंडरफुल। मेरा एक क्वेश्चन था आपको जो मैं आगे पूछने वाली थी कि डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड टू यू फॉर व्हिच यू हैड नो एक्सप्लेनेशन। आपने उसका जवाब तो मुझे पहले ही दे दिया। जी 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 कोई नहीं हो, पर दैट्स फाइन। So being a single mom of 2 boys, how was your journey? Well, I was not single all throughout. Yeah. So mostly yes. Yeah. तो ये रहा कि मैंने क्या कहते शाहिद तो पैदा हुए थे जब मैं बहुत छोटी थी,
तो मैंने कदम ही रखा था अपने 20s में और वो पैदा हो गया। एंड मुझे मेरी शायद जिंदगी की जो 2-3 सबसे बड़ी खुशियां हैं उनमें से एक यही है कि, और मुझे शौक भी बहुत था। मैं छोटी थी और मैं बहुत पराठे से नाच रही थी हर जगह, और एज अ कथक एक्सपोनेंट मेरा सबसे ज्यादा नाम भी हो गया था अपने जनरेशन में। और तब भी बस मुझे ये था कि मेरे अपना बच्चों का बहुत ज्यादा मुझे वो था कि मेरा अपना कोई एक बच्चा हो जो मेरा हो और मेरा दोस्त हो, मेरी हर चीज हो, मेरी जिंदगी हो, और लगते जिगर हो। तो वो तो पैदा हो गया शाहिद, माशाल्लाह, एंड इट वाज सो सच अ बिग ब्लेसिंग। लेकिन उसके बाद हमारी शादी जो है वो डिस्टेंस की वजह से और भी कुछ वजह होंगी तो वो नहीं रही। तो हाँ, वहां से एक पेचीदा जरा जर्नी हो गई। जो एक सफर था वो, उसमें पहली बार एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया आया। और मैंने शायद को माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, दैट्स यार। अम्मी अब्बू दे वर अमेजिंग, यू नो, एंड उन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत छोटी भी थी और मुझे शौक भी लगा था, धक्का लगा था, तो मुझे 1-1.5 साल लगा। लेकिन उसके बाद मैंने वापस कदम रखा अपने प्रोफेशनल एरिया में और नाचना शुरू किया, शोज करने शुरू किए। और साथ साथ मैंने फिर वही तलाश किया लेक टंडन का, जिसमें मैंने शहनाज का किरदार प्ले किया था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो वहां से फिर मेरी जिंदगी जो है वो एक उसने एक अलग रुख लिया और करवट ली, बहुत ही खूबसूरत। और मैं क्या कहते हैं, कुछ ही चंद साल उसके बाद शाहिद को लेके फिल्में रही, बॉम्बे आ गई। तो फिर यहाँ फिल्में मुझे बहुत छोटी उम्र से मिलती थी जो मैंने नहीं की, क्योंकि आई वाज वेरी डिवोटेड टू कथक। एंड मैं कर भी रही थी बहुत। मेरा मतलब जैसे कहते हैं कि आई वाज मच इन डिमांड, तो बहुत मैं परफॉर्म करती थी हिंदुस्तान के हर कोने में, दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं गई। और शाहिद को लेके जाती थी, छोटा सा शाहिद मेरा स्टेज पे बैठता था शेरवानी पहन के, और बड़ी बड़ी आंखों से, ड्रीमी आंखों से मुझे देखता था नाचते हुए। तो शाहिद मेरे साथ बहुत ट्रैवल किया उससे जब वो छोटा था। फिर जब वो थोड़ा उसके सीनियर क्लासेस, एकदम सीनियर क्या मतलब फर्स्ट सेकंड में जब उसने कदम रखा, तो फिर मैंने उसको ले जाना कम किया। तब भी ले जाती थी छुट्टियों वगैरह में। तो अगर उसके बाद तो मैं बॉम्बे ही आ गई। और जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे पास बहुत सारी फिल्में आई, उमराव जान अदा, उत्सव, दो अनजाने, सौतन की बेटी, प्यार की जीत, और बड्डी, और अनगिनत फिल्में आई। लेकिन मैंने नहीं की। देव साहब भी बहुत कीन थे मेरे साथ एक फिल्म बनाने की, गाइड जैसी, जिसमें डांस और उस तरह का। लेकिन मैंने बहुत फोकस किया अपने, और मुझे बहुत सारे लोग जो हैं, जो थिएटर के थे, जिनके साथ मैंने बहुत थिएटर किया, प्लेस किए, उनको लगता था कि क्यों नहीं करती, इतनी बड़ी फिल्में और लीड में आ रही हैं और इतने बेहतरीन मेकर्स के साथ। लेकिन मेरा पूरा फोकस और मेरा पैशन, डिवोशन कथक के ही तरफ था। तो मैं थिएटर जरूर करती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं फिल्मों में चली गई तो ये मेरा रह जाएगा और छूट जाएगा, और पता नहीं फिर। तो मैंने एक्चुअली बहुत छोटी उम्र से नाम कमाया। मैं 15 साल की थी जब मैंने पहले अपना कथक का सोलो किया, और वहां से फिर आई नेवर लुक्ड बैक। तो बहुत, लेकिन सीखती मैं महाराज जी से 10 साल और तो लोगों के नाम हो जाते हैं, तो लोग मशहूर हो जाते हैं कलाकार, तो वो फिर उसमें बिजी हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी तालीम नहीं छोड़ी। मैं बिल्कुल, आज मेरा शो हुआ, अखबारों में आ रहा है, और मैं क्लास में खड़ी हूँ छोटी बात के, कस के अपने, है ना। तो वो था मेरा। Wonderful, wonderful, wonderful. So, for now, you met so many people around the globe or in your life. 5 लोग अगर आप पिक करें उसमें से जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, तो वो कौन लोग होंगे? अब देखिए, ग्लोबली मैं अगर नाम ना लूं और उनका लूं, जिन्होंने वाकई मुझे जिंदगी में सहारा दिया, सपोर्ट किया, और साथ साथ वंडरफुल गाइडेंस दी, और जिनसे मैंने बहुत नॉलेज और इल्म पाया और मोहब्बत पाई, तो मैं कहूंगी मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज, मेरे पेरेंट्स,
मेरे भाई, उनका नाम है मिस्टर A.N. अनवर, हम प्यार से उनको पाशा कहते हैं, अंग्रेजी के बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं और अभी उन्होंने रिटायर किया है। वेंकटेश्वरन कॉलेज में पढ़ाते थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुए, एंड ही इज अ ब्रिलियंट मैन एंड ही इज बीन अ वंडरफुल गाइड इन माय लाइफ। मेरी पर्सनालिटी पे मेरे म्यूजिक का शौक और जिंदगी का फलसफा और बहुत सी चीजों पे उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा। अनवर, A.N. अनवर, वैसे तो उनका नाम अहमर है, और मेरे फादर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, मिस्टर अनवर अजीम साहब का। माय मदर वाज अ ग्रेट सपोर्ट इन माय लाइफ, एंड अब इन 3 लोगों के अलावा, 4 लोगों के अलावा 2 लोग और हैं जो मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उनका नाम है शाहिद और ईशान। शाहिद और ईशान। तो ये मैं दुनिया घूमी हुई हूँ और मेरी जिंदगी में बहुत से वंडरफुल लोग आए। मिस्टर ऋषिकेश मुखर्जी से मुझे बहुत सीखने को मिला, मिस्टर लेक टंडन से बहुत सीखने को मिला, मिस्टर महेश भट्ट से सीखा, और म्यूजिक के वर्ल्ड में उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से बहुत सीखा। तो ये बेहतरीन लोग थे जो बाहर की दुनिया से सबसे पहले मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी, जो आज भी मेरी जिंदगी के बहुत बड़े इन्फ्लुएंस हैं। मगर ये कि ये लोग, ये 6 लोग मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। My parents, my guru, my brother and my 2 sons. Of course. अभी तो वो एक छोटी सी मुन्नी सी और आ गई हैं, तो वो साथ भाई में वो हो तो गई। अब वो ही हैं, वो अब अब तो मीशा और मीशा है। मीशा मेरी जिंदगी मीशा का is क्या, मैं उसको प्यार से जान बताशा बुलाती हूँ, और वो मेरी हार्ट बीट है, वो मेरा लख्ते जिगर है, और जैन जो And how बिल्कुल about वो बिल्कुल शाहिद की शक्ल का है, अच्छा, और बहुत प्यारा है, और बहुत सारी बातें अब कर रहा है, बहुत ज़हीन है। तो मैं इन दोनों बच्चों में बहुत डीपली मशगूल रहती हूँ। of course. About मीरा as बहू। हाँ, तो बहू तो एक टाइटल है, Yeah, of course. और वो दुनियावी है, Yeah. और मेरे लिए भी है, और खानदान के लिए भी है, लेकिन वो मेरी बेटी है। वो बिटिया जो मेरे पास नहीं थी, वो मीरा है, और मीरा के साथ बड़े आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, खरामा खरामा मेरी दोस्ती बढ़ी, जान पहचान बढ़ी, और आज वो एक बहुत ही मेरी जिंदगी का जिसे कहते हैं कि खास हिस्सा है, सेंट्रल हिस्सा है मीरा। और उसने पूरे खानदान में जो खुशियां फैलाई हैं, एक तो इतनी प्यारी औलाद पैदा की दोनों बार, और फिर उसके बाद उसके अलावा she is just centered the family, you know, and she's brought so much happiness to Shahid, and she has given him everything, you know, that a wife can give and more. And so और मुझे बहुत मीरा से मोहब्बत है, मीरा को मैं बहुत मानती हूँ। Of course. What is your favorite thing to spend more money on it? Actually, Razia, I'm not a materialistic person at all. तो मैंने जिंदगी में बहुत ही छोटी छोटी, मेरी दोस्तें मुझसे कहती हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं, उनका भी नाम मैं जरूर लूंगी। मेरी दोस्त है नीरा बत्रा, मेरी खास और खास दोस्त है जारा सौदागर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं मोनिशा बैनर्जी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है सुलेखा खन्ना, और इस तरह से कई और हैं, बहुत प्यारी दोस्तें हैं। तो नीरा मुझसे हमेशा ये कहती है, जिसको मैं प्यार से रूबी बुलाती हूँ, उसका पेट नेम है, तो रूबी मुझसे हमेशा कहती है कि तुम्हें तो छोटी छोटी चीजों में इतना मजा आ जाता है नीलिमा, कि आज तक तुम वैसी ही हो, तुम्हारे अंदर किसी किस्म की लालच नहीं है, और तुम्हें इकट्ठा करना और इस तरह से ढेर करना चीजों का कोई शौक नहीं है, प्यारी प्यारी छोटी चीजों में खुश हो जाती हो। तो मैं तो मटीरियलिस्टिक हूँ नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, ये जरूर है कि ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो अगर मुझे जरूरत पड़ी, हालांकि मैंने आज तक अपने पैसों से तो कभी ट्रैवल किया ही नहीं, क्योंकि मैं या तो बेटों के साथ गई, और उससे पहले मैं बहुत ट्रैवल किया दुनिया में थ्रू माय डांस, एंड सो एज एन एक्ट्रेस आल्सो आई ट्रैवल्ड सो मच, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी अपने पैसों से ट्रैवल। मगर अगर पैसे खर्च करने ही हैं, तो मेरे ट्रैवल करने का ये कोई शौक नहीं है कि मैं जाके बस हर जगह शॉपिंग करती रहूं या नज़ारे देखूं।
मेरा बड़ा शौक है कि अगर मैं टर्की गई तो वहाँ के डांसर्स के साथ, जो वहाँ के खास सूफी डांसर्स हैं, या स्पेन गई तो वहाँ के जो फ्लेमिंको के डांसर्स हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत, हमने किया भी है उन लोगों के साथ, उनकी बेहतरीन डांसर्स के साथ मैंने किया है exploratory fusion work. So this way I would love to travel with my dancing and do something new and just stay with those dancers and musicians and explore the world in a very ethnic way, actually, you know. So all right, let's move on. If you could spend the day with any celebrity of your life, who would it be? Oh my God, this is such a difficult question because I like so many of them. Okay, just pick up. But if it had to come to that, then my God, there's so many great, lovely actors and dancers and musicians. Nicolas Cage. Oh, wonderful. And if it had to be an Indian actor, unfortunately, he's no more, and he asked me out, but I didn't go because I was married, was Mr. Rajesh Khanna. Oh, sweet. Oh, sweet. And another wonderful, wonderful musician who's no more, Elvis Presley. Oh, yeah. तो निकोलस केज, एल्विस प्रेस्ले, राजेश खन्ना दो तो रहे नहीं. अब निकोलस केज मुझे ले जाए डिनर पे तो मजा आ जाए. Wish you good luck. Absolutely, absolutely. So, describe. There is another musician who's very young and fabulous. I would love to do something with him also. His name is Stephen Hauser, and he's a cello, player. He's a great maestro, and I would love to do something with him. So he's a contemporary name I'm taking. Okay, sure. All right. So, as you have two, mashallah, two sons, and who are seeking advice more than other from you? किसको ज्यादा जरूरत पड़ती है एडवाइस की? ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना, क्योंकि अपने अपने अंदाज से और अपने अपने तरीके से नेचुरली शायद आप बड़े हैं और बहुत मंझे हुए हैं अपने काम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहिद को शौक है पूछने का. अच्छा. और वो एडवाइस करके नहीं लेता है, लेकिन वो बातें करता है और बड़े गौर से सुनता है अगर कुछ आप उसको बताएं, और वो इम्प्लीमेंट भी करता है. सो ही इज अ वेरी गुड बॉय, and he's a wonderful son and wonderful father. Father के सामने तो भाई कोई भी नहीं. And he's a wonderful husband also. But ईशान जो है वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करता है. तो उसका ये है कि वो एडवाइस लेने नहीं बैठता मुझसे, because he's very independent in his work and his thoughts and his lifestyle. He's very independent. But हर चीज उसको मुझे बतानी है, चाहे वो रात के 2 बजे हो. तो अगर उसका काम खत्म हुआ है 2 बजे तो वो मुझे फोन कर ही देता है. और शाहिद जो है वो लंबी लंबी फलसफाना और आइडियोलॉजिकल बातें करता है मुझसे. Very serious man, very family oriented person. He's not serious, because when you say serious, then you always feel that maybe somebody is very sober and somber. It's just that Shahid has a very strong spiritual following. Okay. He's always been bent that way ever since he was a child. जब वो छोटा था तो वो कहता था मुझे मोसेस की कहानी सुनाई है. बच्चे जो हैं वो फादर क्रिसमस की कहानी सुनते हैं, लेकिन ये मोसेस की सुनता था. So both of them in their own way, they share a lot with me. Okay, so what is the funniest thing that has happened to you recently? The funniest thing that has happened to me recently? Yep. Recently nothing funny is happening. We are all locked down. We are all stuck in our houses. Exactly. Yes. Absolutely. Okay. Funniest thing that could have happened to me was that we were in Goa, and we spent a good almost 3 months there. और मुझे एक ही चीज से जिंदगी में डर लगता है,
और वो है सांप। वैसे तो डर थोड़ा बहुत सब चीजों से लगता होगा, और भी चीजें, नॉट सब, बट सांप से बहुत लगता है। जिस हम विला में रह रहे थे इस्प्रावा में, उस दिन एक दिन क्या हुआ, खाना खा रहे थे एंड मैं वहां पूल साइड पे, मेरा बेडरूम खुलता था, तो दरवाजा खुलता था तो पूल साइड पे खुलता था, और वहां एक दो काउचेस और कुर्सियां थी, तो मैं एक खास कुर्सी पे बैठती थी। तो पता ये चला कि एक सांप उसी कुर्सी पे, उसी रॉयल्टी के साथ, उसी कंफर्टेबल फीलिंग के साथ बड़े अंदाज से अपने बैठा हुआ था फन फैला। Oh my God. तो ये मेरे लिए बहुत फनी चीज हुई, क्योंकि इट इज अ लेसन आल्सो एंड इट्स फनी आल्सो, कि जिस चीज से डर लगता है उसको मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि वो मेरी ही कुर्सी पे बैठा और मेरे ही अंदाज से बैठा। For your grandchildren, Misha and और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बच्चों में बहुत आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं, बहुत टैलेंटेड लगते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि वक्त से पहले कोई भी चीज कहना गलत है। तो मगर मेरी ख्वाहिश है कि वो हमेशा खुश रहें और खूब पले और खूब खुश रहें, बस ये है मेरा। बिल्कुल, और अच्छे इंसान बने, मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि वो अच्छे इंसान बने, दूसरों की मदद करें और मिठास से बात करें और काइंड एंड कंपैशनेट रहें, ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप बताइए, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है? अभी आपने 2-3 सीरियल भी किए हैं, वेब सीरीज भी किए हैं, आई लव दैट, मॉम एंड कंपनी। मॉम एंड को, हाँ, मॉम एंड को। सो वो बहुत अच्छा सीरियल था पूरा रहे। तो अभी आप क्या कर रही हैं फिलहाल उसके बाद? अभी मैंने एक्चुअली, बहुत मजेदार बात है, लीगल भी किए आपने, दोस्ती के नाते मैंने एक सीक्वेंस कर दिया था, 2 सीन्स का, एक बड़ा लंबा सा सीन है और उसी का बस अलग अलग हिस्से हैं। दोस्ती में कर दिया था अलंकृता के लिए। अच्छा। क्योंकि उसकी पहली फिल्म मुझे अच्छी लगी थी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, और उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन फिर बहुत इसरार के बाद फिर घर पे भी आ गई और मुझे बताया कि ये रोल क्यों वो चाहती कि मैं ही करूं और कोई नहीं करे, और फिर मैंने कर दिया। और ये उसकी जो दूसरी फिल्म है डॉली किटी और चमकते सितारे, उसमें मैंने ये सीक्वेंस किया। 57th मिनट पे मैं आती हूँ फिल्म में, एंड इट has brought me so much of love and so much of prestige, and people have really, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही सीन था, इतनी क्या तारीफ है। तो वो मैंने अभी रिसेंटली किया, और एक मेरी फिल्म आई थी द इलीगल, जो मामी में दिखाई गई थी, तो वो मेरी रिसेंट वर्क है। और अब मॉम एंड को के बाद आई टुक अ ब्रेक बिकॉज मेरी बैक का कुछ प्रॉब्लम काफी बढ़ गया था, तो मुझे तकलीफ हो रही थी काम करने में, एंड सो आई हैड पुट ऑन वेट आल्सो बिकॉज ऑफ दैट। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी पीठ को कस लूं और वेट लूज कर लूं। तो अभी तो मैंने 8-9 केजी लूज कर लिए हैं, और मेरा प्लान है 10-12 और लूज करने का। तो योगा कर रही हूँ, और एक अच्छे डाइट और योगा के डिसिप्लिन में हूँ, वक्त से सोना, वक्त से सब करना। राइटिंग का मूड है, कुछ लिखूंगी, और वो चल रहा है मेरे दिमाग में, वो खिचड़ी पक रही है और मैरिनेट हो रही है। ओमपुरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, उससे पहले सुभाष घई को दिया था। ओमपुरी बहुत मेरे ये ओम हो गए, हाँ, और जसपाल करके बहुत अच्छे एक्टर थे एनएसडी के, नसीर जी, और ये मतलब आप ये समझिए कि राज बब्बर और पंकज कपूर और भी बेहतरीन आर्टिस्ट जो थे, उनके साथ नादरा ज़हीर बब्बर, and so I worked with them when I was a child, and I did leads also, and मुझे याद है इब्राहिम अलकाजी साहब, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को उसकी शक्ल दी और उसकी रूह दी और उसका इल्म, सब कुछ वही थे, रीढ़ की हड्डी थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, और he was the embodiment of great theatre, and he offered me a job, जबकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं पढ़ी हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एनएसडी से हैं क्या, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल, तो मगर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं हूँ, मैं नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो मैं भी एनएसडी से हूँ। तो अलकारी साहब ने मुझसे कहा था कि रिपर्टरी ज्वाइन कर लो हमारी प्रोफेशन,
and we would like to have you as one of absolutely right actors. तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मैं एनएसडी की नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना थिएटर किया था, और एक खास तरह का थिएटर जो है, they used to seek me out also. I had a forte for comedy and all the historicals and all your costume dramas, and जहाँ पे बहुत टीपू सुल्तान में आपका बहुत अच्छा रोल था. जी. So you know, I told him, I said, अच्छा ये बताइए काजी साहब, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत बड़े फैन है महाराज जी के, और उनके सारे बैलेज आके देखते हैं. तो because of the production, stage production and everything, तो मैंने कहा कि अगर आपको आज मौका मिले अपने आप से सीखने का, या फिर पंडित बिरजू महाराज जी से अभिनय सीखने का, तो आप किसको चूज करेंगे? के लिए बहुत तेज है, और मुझे के लिए ऐसा जवाब दे दिया कि मेरे मुंह में जबान ना रह गई. और फिर मेरे अब्बू से कहा उन्होंने, अब्बा से, हमारे अनवर अजीम साहब से, कह ली कि भाई आपकी बेटी तो बहुत ही ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड और जवाब उसने ऐसा दे दिया मुझे कि मेरे पास कोई वही नहीं रह गया. तो अब यही है, दिस इज हाउ इट इज. वंडरफुल. सो अभी आपने एक और फिल्म भी की थी ना, अलिफ ज़ेगम की. जी. सभी को तकलीफ हो रही है रजिया, बहुत प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का भी बड़ा मसला है, बहुत कुछ है. Thank you so much. Lovely meeting you and on the screen and talking to you through Zoom, and I wish you all the best. Thank you so much. And inshallah राब्ता रखेंगे. बहुत शुक्रिया. Thank you.